Hello students, today I am going to start new chapter in science, light, sound and force. Light, sound and force. So students, what is light? I have already taught you that when we look up in the sky during the daytime, what do we see? We see sun. And during the night, we see many stars and moon. Right? Sun is the main sources of energy. Sun is the main sources of energy. And sun emit their own light. Like that, stars also emit their own light. I have already taught you. But moon, name the heavenly bodies, students, name the heavenly bodies that do not emit their own light. That is moon, right? So, both sun and stars are luminous objects, whereas moon is a non-luminous object. Okay. Now, let's start our chapter. Luminous objects and non-luminous objects. Luminous objects are those objects that emit their own light. The objects that give out light of their own are called luminous. जो अपना लाइट खुद का एमिट करे उसे luminous कहते हैं, और जो अपना लाइट नहीं एमिट करे, खुद का लाइट एमिट ना करे, हम उसे कहते हैं नॉन luminous objects, right? So luminous objects. The object that give out light of their own are called luminous objects. The objects that give out light of their own. Objects that give out light of their own are called luminous objects. Example: sun, star, right? Example: sun, stars, दिया, राइट? और कौन से एग्जाम्पल है? कैंडल, बल्ब, कैंडल are the examples of luminous objects, right? Bulb, a diya and a candle also give out light. ये भी क्या करते हैं? Give out करते हैं light, right? ये तीनों क्या है? दिया, bulb, candle, these are the man-made objects. Now next, non-luminous objects. Non-luminous object. Non-luminous objects. The objects that do not give out light are called non-luminous objects. Example: table, chair, book, newspaper, and so many others. Moon भी क्या है? Moon is also a non-luminous object, right? Understood all of you? So this is about luminous and
non-luminous objects. Students, light travel in a straight line. Light always travel in a straight line. Light जो है हमेशा straight line में travel करता है, right? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने कैंडल जला दिया। अब आप कैंडल को जब इस तरीके से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर मैंने इसको बेंड कर दिया और उसके बाद आप देखेंगे तो आपको लाइट स्ट्रेट लाइन में दिखेगा ही, आप कुछ भी देख नहीं पाएंगे, ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। सो इट इज क्लियर दैट लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज शैडो? शैडो क्या होता है? शैडो क्या होता है स्टूडेंट? शैडो मीन्स द डार्क पैचेस। जो डार्क पैचेस आप देखते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, उसे क्या कहते हैं? शैडो कहते हैं। आप लोग ऑब्जर्व करते हैं ना, जब भी आफ्टरनून में जब भी आप खड़े रहते हैं, जब सन का रिफ्लेक्शन पड़ता है तो वहाँ पर खड़े रहते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका जो लाइट है आपकी जैसी क्या होती है? पैचेस दिखते हैं, मतलब परछाई दिखती है, ठीक है। हम उसी को क्या कहते हैं? शैडो। क्लियर? सो शैडो क्या होता है? यू विल सी अ डार्क एरिया ऑन द वॉल। फॉर एग्जाम्पल आप कोई एक बुक ले लीजिए, ठीक है। उस बुक को और नाइट के टाइम अपने रात को जैसे रात में आपने टॉर्च जलाया और इस तरीके से आपने एक बुक ले रखा है। अब उसे क्या कीजिए, ये बुक है आपके पास, अब आपने टॉर्च जलाया है, ठीक है। टॉर्च जलाने के बाद देखिए कि इसका जो पैचेस है वो आपको वॉल पे दिखेगा, ठीक है, डार्क कलर का पैचेस। सो अ शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक द पाथ ऑफ द लाइट। शैडो तभी बनता है जब कोई ऑब्जेक्ट ब्लॉक कर देता है पाथ ऑफ द लाइट। When we go out in the sun, we can see our shadow on the ground. This is because we block the light of the sun from falling on the ground. आप लोग देखते हो पैचेस on the ground जब भी हम लोग सन पे जाते हैं, क्यों? Because we block the light of the sun. सन की जो लाइट है उसको ब्लॉक कर देते हैं, इससे वो ग्राउंड पे नहीं गिरता है, ठीक है। When we go out in the sun, we can see our shadow on the ground. This is because we block the light of the sun from falling on the ground. Understood all of you? Now student, what is force? Force क्या होता है? Force, a push or pull is called force. Force किसे कहते हैं? A push और pull is called force. जैसे for example, अभी मेरे पास ये ग्लास है, ठीक है। मैंने इस ग्लास को अगर मुझे खींचना है अपनी तरफ, मुझे खींचना है तो इसे क्या कहेंगे? पुल। और जब मैं इसको धक्का दूंगी तो इसे क्या कहेंगे? पुश, ठीक है। जैसे आप लोग गेट क्या करते हैं? खींचते हैं बंद करने के लिए, और जब खोलना होता है तो पुश करते हैं, ठीक है। तो पुश और पुल को ही आप क्या कहते हैं? फोर्स। हम फोर्स अप्लाई करते हैं तभी कोई चीज, तो आप उसी को क्या कहते हैं? फोर्स। ए पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, राइट। फोर्स क्या होता है? फोर्स कॉजेज वेरी चेंजेस। इट कैन चेंज द डायरेक्शन, शेप, साइज, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक गर्ल, यहाँ पे एक टेबल रखा है, ठीक है। अगर मैंने उस टेबल को खींचा तो उसका क्या हुआ? पोजीशन चेंज हो गया। पहले इधर था, मैंने इधर खींच लिया तो उसका पोजीशन चेंज हो गया, ठीक है। बॉय किकिंग अ फुटबॉल, तो उससे भी क्या होगा? पहले वो स्टेशनरी पोजीशन में था, ठीक है। अब पहले उसे किक किया तो वो मूव करने लगा, ठीक है। अगर मैंने बॉल को उठा लिया तो वो स्टॉप हो गया, तो उसे आप क्या कहते हैं? फोर्स, ठीक है। नाउ साउंड, लास्ट टॉपिक साउंड। सो स्टूडेंट, इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अबाउट नॉइस। अनप्लेजेंट साउंड को हम क्या कहते हैं? नॉइस, राइट। अनप्लेजेंट साउंड को वी कॉल इट नॉइस, राइट। वी हियर साउंड ऑल अराउंड अस, ठीक है। द बार्क ऑफ अ डॉग, ठीक है, चीपरिंग ऑफ अ बर्ड, रिंगिंग ऑफ द स्कूल बेल,
ठीक है, ये सारी क्या है, साउंड है। आप लोग अपने सराउंडिंग एरिया में बहुत तरीके के आपको साउंड आप लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। कभी आप लोग शादी में भी जब जाते हैं तो बहुत तरह के स्पीकर वगैरह यूज़ किया जाता है, तब आप लोग उसको सुनते हैं। अनवांटेड नॉइस होता है जिससे आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। आप टीवी ऑन करके रखते हैं तो भी साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जब आप स्कूल की बेल बजती है तो भी आप साउंड को हियर करते हैं, राइट। वी प्रोड्यूस साउंड व्हेन वी स्पीक। अभी जब मैं आपके सामने बोल रही हूँ तो क्या प्रोड्यूस कर रही हूँ, साउंड ही तो प्रोड्यूस कर रही हूँ, ठीक है। जब मैं अगर मैं हंसी तो भी साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड। साउंड भी होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, सॉफ्ट, लाउड, प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट, ठीक है। सॉफ्ट, लाउड जब जोर की बोलते हैं, प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट। सो ये साउंड क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रोड्यूस ही तो कर रहे हैं, राइट। यू चॉप वेरी सॉफ्टली व्हाइल प्लेइंग चाइनीज, ठीक है। और भी बहुत तरीके, जैसे ड्रम जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, बहुत ही लाउड साउंड प्रोड्यूस करता है। जब आप लोग एक दूसरे से कान पे बोलते हैं तो बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, राइट। उसके लाउड नॉइज जैसे ड्रम वगैरह बजता है, प्लेजेंट साउंड जैसे आप बर्ड वगैरह का सुनते हैं, अनप्लेजेंट साउंड जब बहुत सारे व्हीकल्स एक साथ होते हैं, जब मूव करते हैं तो आप लोगों को क्या सुनाई देता है, बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट साउंड हियर करते हैं आप लोग, ठीक है। सो जैसे बर्ड चिपरिंग करती है, सॉफ्ट म्यूजिक सुनते हैं तो आप लोग बहुत खुश हो जाते हैं, उसे सुनना आप लोगों को अच्छा लगता है और वी फील हैप्पी, राइट। लेकिन डिसलाइक जो बहुत ही अनवांटेड साउंड होता है वो तो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। अनप्लेजेंट साउंड को ये क्या कहते हैं, नॉइज। अनप्लेजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज। अनप्लेजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज, राइट। Noise disturbs the people. Too much of noise can also damage our ear. So we should speak softly. Avoid too much of honking. Keep the volume of the radio and television low. जो वीडियो और टेलीविजन का जो वो है उसे लो करके रखना चाहिए. Understood all of you? So now students, our chapter is completed. Thank you so much to all of you.